फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है यार फिजिक्स क्लासेस में। आज हम लोग नए टॉपिक की बात करेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस मींस रेजिस्टेंस को किस तरह से कंबाइन करेंगे उसके बारे में जानेंगे। इसके पहले हम लोग बहुत सारे टॉपिक पढ़ चुके हैं, रेजिस्टेंसेस के बारे में भी पढ़ चुके हैं। अब उसका कॉम्बिनेशन की बात करेंगे, हाउ वी कैन कंबाइन रेजिस्टेंसेस। सो combination of resistances, there are two types of first series combination of resistances and second parallel combination of resistances. First of all, we talk about the series combination of resistances. What is the series resistances of resistances? First of all, we see the definition of the series combination of resistances. Two or more resistors are said to be Two or more resistors are said to be connected in series if they are connected one after the other. Means एक के बाद एक अगर रेजिस्टेंसेस को कनेक्टेड करते हैं तो उसे हम सीरीज कॉम्बिनेशन कहेंगे। In series combination, the same current flows through all the resistors when some potential difference is applied across it. Means जो भी सीरीज कॉम्बिनेशन में होते हैं रेजिस्टेंसेस, उनमें सेम करंट प्रोवाइड होते हैं, बट पोटेंशियल डिफरेंस जो होते हैं डिफरेंट फॉर ऑल द रजिस्टर्स। यानी कि जो भी रजिस्टर्स होते हैं उनके जो मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो हम कहेंगे टू और मोर रेजिस्टेंस आर सेड टू बी इन सीरीज कॉम्बिनेशन इफ one after the other resistors are connected to each other and the same electric current flow from the combination and the some potential difference is applied across the combination. तो हम बात करते हैं, ध्यान से समझिए। इफ दिस इज द रजिस्टर्स एंड वी हैव टू कंबाइन इन सीरीज कॉम्बिनेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज R1 रजिस्टर्स, दिस इज R2 रजिस्टर्स, दिस इज R3 रजिस्टर्स। मीन्स देयर आर 3 रजिस्टर्स वी वांट टू कंबाइन इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो हम करते क्या है कि फर्स्ट रजिस्टर्स का जो सेकेंड पॉइंट होते हैं, सेकेंड इन पॉइंट होते हैं, सेकेंड रजिस्टर का फर्स्ट पॉइंट से हम कनेक्ट करते हैं और सेकेंड रजिस्टर्स का सेकेंड पॉइंट जो होते हैं थर्ड रजिस्टर का फर्स्ट पॉइंट से कनेक्ट करते हैं। तो इस तरह का कॉम्बिनेशन जो होता है उसे हम सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस बोल देते हैं। इसका जो करंट होता है वो I, इस तरह से I करंट फ्लो होता है और इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, डिफरेंट रेजिस्टेंसेस है डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंट रेजिस्टेंसेस है डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस लाइक दिस एंड टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इज V. Total potential difference is V. We have to find the value of the combination of resistance. What is the equivalence of the combination of resistance? Suppose that we have to combine 3 resistances in series combination. Then what is the value of equivalence of this combination? Means if there are 3 resistors, there are 3 resistances are connected in series combination which have potential differences are V1, V2 and V3 and current
is I. Then total potential difference V is V1 plus V2 plus V3. This equation is first. We know that, but according to Ohm's law, V1 is equal to I R1, V2 is equal to I R2, and V3 is equal to I R3. We know that according to Ohm's law, V is equal to IR. So we can write V1 is equal to IR1, V2 is equal to IR2, and V3 is equal to IR3. From equation first, we can write V is equal to IR1 plus IR2 plus IR3, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं V is equal to I कॉमन है R1 प्लस R2 प्लस R3, और दिस इक्वेशन इज ट्रू. इस इक्वेशन को हम क्या करते हैं, सेकेंड इक्वेशन कर लेते हैं. एंड इफ द combination of resistances means equivalence of the combination of resistances is capital R S, then total potential difference is V. लिखेंगे क्या, if combination resistances has, if combination of resistances has capital R and potential difference is V, then according to Ohm's law, V is equal to IR. V is equal to IR, इसको हम S कर लेते हैं. RS का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेज इन सीरीज कॉम्बिनेशन. IRS, इसको इक्वेशन थर्ड कर लेते हैं. फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3, if left hand side is equal, then right hand side is also equal, then we can write IRS is equal to I into R1 plus R2 plus R3, और ये I कैंसिल हो जाएगा. सो RS is equal to R1 plus R2 plus R3. This is the equivalence resistances. यहाँ पे if the combination of resistances has RS, या फिर इसको लिख सकते हैं if the equivalence combination of resistances has RS and potential difference is V, then according to Ohm's law V is equal to IRS. इसको इक्वेशन थर्ड करते हैं. फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 we can write IRS is equal to I into R1 plus R2 plus R3. I कैंसिल हो जाएगा. So RS is equal to R1 plus R2 plus R3. This is the final equivalence of the combination of resistances. RS is the सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेज. सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेज का वैल्यू फाइंड करना होगा, तो इस तरह से RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 का फॉर्मूला यूज करते हैं. इसमें स्पेशल नोट की बात करते हैं. इन सीरीज कॉम्बिनेशन इलेक्ट्रिक करंट इज द सेम फॉर ऑल दी रेजिस्टेंसेज.
जो भी इसमें रेजिस्टेंस है R1, R2, R3, इसके जो इलेक्ट्रिक करंट होते हैं वो सेम होते हैं, सेम फॉर ऑल द रेजिस्टेंसेस, एंड पोटेंशियल डिफरेंस is different for different resistances. Means each resistances has different potential difference. Like R1 resistances had different potential difference. V1, R2 resistances had different potential difference. V2 and R3 has V3. So we can say that a special note. In series combination, potential difference is different for different resistances and the electric current is same for all these substances. And the formula of the series combination, RS is equal to R1 plus R2 plus R3. We have to take one example, numerical. We can solve the numerical for this theorem. Suppose that three resistors are connected in series combination. If three resistors are connected in series combination which has the value of resistances has 1 ohm, 2 ohm and 3 ohm. Find equivalence resistance. So we can solve. R1 is equal to 1 ohm, R2 is equal to 2 ohm, R3 is equal to 3 ohm, then RS is find. So since RS is equal to R1 plus R2 plus R3, so 1 ohm plus 2 ohm plus 3 ohm, and we find 3 to 5 1 6 ohm. This is the right answer of this question. तो इस तरह से हम क्या करते हैं, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. सबसे पहले if three resistances R1, R2, R3 as given connected in series combination which has the value of resistances has 1 ohm, 2 ohm and 3 ohm, find the equivalence resistances. तो सबसे पहले हम कहते हैं क्या है कि जो वैल्यू दिया है उसको नोट करते हैं. R1 is equal to 1 ohm, R2 is equal to 2 ohm and R3 is equal to 3 ohm, and find the RS means equivalence resistances in series combination. RS is equal to what? Since we know that formula of RS is equal to R1 plus R2 plus R3, so we can put the value of R1, R2, R3, 1 ohm plus 2 ohm plus 3 ohm is equal to 6 ohm is the right answer. अब हम लोग बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस. पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस की बात करेंगे. अब हम लोग सेकेंड कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस. इसके पहले जो हम लोग थ्योरी पढ़ रहे थे वो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस पढ़ रहे थे. अब बात कर रहे हैं parallel combination of resistances. What is the parallel combination of resistances? So first of all we can talking about the definition of the parallel combination of resistances. Two or more resistors are said to be in parallel if one end of a resistor is connected to one end of the other resistors and the second end of the first resistors is connected to the second end of the other resistors, and potential difference of the combination is the same for all the resistance and the current is the different. In parallel combination of resistances, potential difference are same for all the resistors and the electric current are the different for the different resistors. So we can
give this type of parallel combination. This is three resistances. This is three resistances, and we want to combine in parallel combination. First of all, we have to connect to this, means this R1, R2 and R3, three resistors are connected first into the first in. This is the first in A and this is the second in B. This is the second in B. We have to combine these resistances in parallel combination. If first resistances and first, second, third resistances has the first of the first point is connected to the first in and the second point is connected to the second in, then this is called the parallel combination of resistances, which has electric current is different for different resistances and potential difference is same for all the resistances. This is connected by the battery. This is whole connected are in parallel combination of resistances. There are three resistances R1, R2, R3 which has electric current I1, I2, I3 and potential difference is V. So this combination is called the parallel combination of resistors. Parallel combination of resistors. So we have to write here three resistances are combined in parallel combination which has different electric current. So total current in combination I is equal to I1 plus I2 plus I3. We can write this is first equation. First of all, you should write that there are three resistors R1, R2, R3 which has electric current is electric current are I1, I2, I3 are connected in parallel combination which has potential difference is V. Then total current in combination I is equal to I1 plus I2 plus I3. But according to Ohm's law, we know that I1 is equal to V by R1, I2 is equal to V by R2 and I3 is equal to V by R3. So from equation first we can write I is equal to we have to put the value of I1, I2, I3. So we can write I is equal to V by R1 plus V by R2 plus V by R3 and we can also write I is equal to V into 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. This is the second equation. If the equivalence resistances are capital R, if the equivalence resistances of combination is capital R and potential difference V and electric current I, then according to Ohm's law we can write
I इज इक्वल टू V बाई आर पी, ये आर पी कर लेते हैं, V I is equal to V by RP. This equation is third from equation 2 and 3. 2 and 3. We can write if left hand equal then right hand also equal. We can write V by RP is equal to V by RP is equal to V into 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3, or V is cancelled. So we can write 1 by RP is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. This is the equivalence of resistances in parallel combination. This is the equivalence of resistances in parallel combination. 1 by Rp is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. Suppose that n resistances are connected in parallel. Suppose that either if n resistances are connected in parallel, then we can write 1 by Rp is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3 plus dot 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 plus 1 by Rn. This is the equivalence of resistances of n resistances in combination of parallel. Either we can write summation I is equal to 1 to n 1 by Ri, 1 by Rp is equal to this. We can also write in short form. अब बात करते हैं एक न्यूमेरिकल की. सपोज दैट 3 रेजिस्टेंसेस. पहले नोट आपको बता दे रहे हैं. नोट जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. नोट में जैसे हमने बताया कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, each resistances has different electric current. Each resistances had different electric current, but potential difference is same for all resistances. Potential difference is same for all resistances in parallel combination. Then what is the difference between series combination and parallel combination? पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमने बताया कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होते हैं सेम फॉर ऑल रेजिस्टेंसेज होते हैं, बट सीरीज कॉम्बिनेशन में डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस फॉर डिफरेंट रेजिस्टेंसेज होते हैं. एंड सेकेंड डिफरेंस जो होते हैं, इलेक्ट्रिक करंट इज सेम फॉर ऑल रेजिस्टेंसेज इन पैरेलल कॉम्बिनेशन. इन सीरीज कॉम्बिनेशन इलेक्ट्रिक करंट is same for all resistors in series combination, but electric current is different for different resistances in parallel combination. How can we know that which is parallel and which is series combination? Suppose that wiring of this house is in parallel combination. Wiring this house is parallel combination. Why? Because each circuit has each means switches कह सकते हैं. जितने भी सर्किट होते हैं मीन्स एक सर्किट में बहुत सारे स्विच होते हैं. डिफरेंट इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैज डिफरेंट स्विचेस, सो दैट कॉम्बिनेशन इज पैरेलल कॉम्बिनेशन. यदि सपोज दैट स्विच जो है वो फैन के लिए अलग है, बल्ब के लिए अलग है, एसी के लिए अलग है, कूलर के लिए अलग है, फ्रिज के लिए अलग है, तो उस कॉम्बिनेशन को हम पैरेलल कॉम्बिनेशन कह देते हैं.
और आप जो जुगनू लाइट देखते हैं दिवाली वगैरह में या फिर शादी वगैरह में, वो जो कॉम्बिनेशन होते हैं वन के बाद वन, वन के बाद वन, इस तरह से हम ऐड करते हैं, कंबाइन करते हैं, तो वो सीरीज कॉम्बिनेशन हो जाता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में एक फॉल्ट हो जाए बीच में तो आगे वाला लाइट जो होता है वो क्लोज हो जाएगा और वो जलेगा नहीं। और इसमें ऐसा है कि अगर बल्ब को जलाएंगे तो बल्ब ही जलेगा, फैन को जलाएंगे तो फैन ही जलेगा। तो इस तरह से ये कॉम्बिनेशन को हम डिटरमाइन कर सकते हैं विच इज सीरीज और विच इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। एक एग्जांपल इस पे बताना चाहेंगे, ध्यान से आप समझिएगा। सपोज दैट three resistances are connected in parallel, 2 ohm, 3 ohm and 4 ohm. Three resistances are connected in parallel combination. Then find the equivalence resistances. First of all, we write the value of the resistances. R1 is 2 ohm, R2 is equal to 3 ohm, R3 is equal to 4 ohm. Find the RP is equal to. RP means parallel combination of resistances. Since we know that 1 by Rp is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3, 1 by 2 plus 1 by 3 plus 1 by 4. We can take LCM, ये 12 हो जाएगा और ये 6, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 3, 6 4 10 और 3 13 बाई 12, ये 1 बाई Rp का वैल्यू है। सो अगर Rp का वैल्यू अगर फाइंड करना हो तो इसको हम अपोज कर देते हैं, प्लट देते हैं, इन्वर्स कर देते हैं, यानी कि 12 बाई। अब हम लोग बात करते हैं न्यूमेरिकल का। इससे पहले हम लोग थ्योरी पढ़ चुके हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेज इन सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, और उस पे एग्जांपल्स भी बना है। अब क्या करेंगे कि फिगर वाले प्रॉब्लम और कुछ मिक्स प्रॉब्लम जो सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन दोनों होंगे, उस पे हम लोग कुछ न्यूमेरिकल बनाएंगे। ये सारे न्यूमेरिकल जो होंगे आपके एग्जामिनेशन और कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो ध्यान से आप देखिएगा इस न्यूमेरिकल को, और कुछ बीच में आपको क्वेश्चन भी देंगे, उस क्वेश्चन को जरूर आप लोग सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इसके पहले जो न्यूमेरिकल बनाया है उसका फाइनल जो है रिजल्ट अब आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, हमें पता चलेगा कि आप ये वीडियो पूरा जरूर देखें। तो लास्ट वाले इससे पहले वाले जो क्वेश्चन हमने बताया उसका आंसर, फाइनल आंसर कितना होगा वो जरूर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो इस क्वेश्चन की बात करते हैं। 4 रेजिस्टेंसेज ऑफ 12 ओम each are connected in parallel, 3 such combination are then connected in series. What is the total resistances? यहाँ दोनों पैरेलल और सीरीज दोनों की बात कर रहा है, क्वेश्चन दिया उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 4 रेजिस्टेंसेज ऑफ 12 ओम each are connected in parallel। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 4 रेजिस्टेंसेज को इस तरह से हम कंबाइन करते हैं। ध्यान से समझिएगा, 4 रेजिस्टेंसेज को हम कंबाइन कर लिए, इस तरह से कंबाइन कर लिए कि ये जो है वो आपका पैरेलल में हो गया। ये 12 ओम, ये 12 ओम और ये 12 ओम, ये 12 ओम। 4 रेजिस्टेंसेज आर कनेक्टेड, 4 रेजिस्टर्स ऑफ 12 ओम ईच आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ये पैरेलल में हम क्या कर दिए, इसको कनेक्ट कर लिए, करा 3 सच कॉम्बिनेशंस आर देन कनेक्टेड, यानी कि जिस तरह का है इसी तरह का 3 सच कॉम्बिनेशन, यानी कि एक तो हो गया। अब इसको इस तरह से भी कंबाइन करते हैं जैसे आप किए हैं, इसको फिर हम कंबाइन कर लेते हैं। ये कंबाइन कर लेते हैं, ये भी 12 ओम, 12 ओम, 12 ओम और ये 12 ओम। फिर एक और करते हैं इस तरह से, ये आप देख सकते हैं, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम फिगर बना रहे हैं, और ये आपका कंबाइन हो गया 12 ओम, 12 ओम, 12 ओम और ये 12 ओम। दिस इज द कॉम्बिनेशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन।
दिस इज द कॉम्बिनेशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब कह रहा फाइंड द व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस, इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा वो हमें फाइंड करना होगा। सबसे पहले हम इस बॉक्स की बात करते हैं। इस बॉक्स में 4 रेजिस्टेंसेस है जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो हम जानते हैं सिंस 1 by Rp is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3 plus 1 by R4। ध्यान से समझिए कि 4 रेजिस्टेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी बात करते हैं 1 by 12 plus 1 by 12 plus 1 by 12 plus 1 by 12 is equal to एलसीएम हमारा 12 हो जाएगा। 1 plus 1 plus 1 plus 1 मीन्स ये 4 by 12, 4 3 जा मीन्स 1 by 3, 1 by Rp is equal to 1 by 3, so Rp is equal to 3 ohm। तो इस कॉम्बिनेशन को हम इस तरह से फाइनल कॉम्बिनेशन हम तैयार करेंगे। ध्यान से समझिएगा, इस तरह से हम फाइनल कॉम्बिनेशन तैयार कर देंगे। और एक को सॉल्व किए हैं, आरपी का वैल्यू हमारा 3 ओम आया, तो इसका भी 3 ओम हो जाएगा और इसका भी 3 ओम हो जाएगा। और आप देख रहे हैं कि 1 एक के बाद एक, एक के बाद एक जब कंबाइन होते हैं तो उसको हम सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं। और जब इसको सॉल्व करते हैं, सिंस आप जानते हैं RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 मीन्स 3 प्लस 3 ओम प्लस 3 ओम प्लस 3 ओम इज इक्वल टू 9 ओम। मीन्स फाइनल रेजिस्टेंसेस, फाइनल रिजल्ट ऑफ दिस कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस इज 9 ओम। ये आपका आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। तो सबसे पहले एक बॉक्स का निकालते हैं, एक बॉक्स का निकालें तो 3 ओम। अब इसको कंबाइन की, इसको कंबाइन की, इस तरह से हम इसको फिगर बना सकते हैं। और ये देख रहे हैं कि ये जो है कॉम्बिनेशन है सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो इसको हम अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला सीरीज कॉम्बिनेशन RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 इज इक्वल टू 3 ओम प्लस 3 ओम प्लस 3 ओम 9 ओम इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसके पहले जो क्वेश्चन पढ़े थे उसमें आपको देखें कि जो हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस है 9 ओम आया। अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। अ लेटर ए कंसिस्ट ऑफ अ यूनिफॉर्म वायर of resistances of 1 ohm per centimeter. The sides of the letter are each 20 centimeter long and cross piece in the middle is 10 centimeter long while the apex angle is 60 degree. Find the resistances of the letter between two ends of the legs. Suppose that according to question हम फिगर बनाते हैं। ये 2 legs हैं, ये A है और ये B है। ध्यान से समझिएगा, 2 legs है। अ लेटर A की तरह हो गया, A इस तरह से कर लेते हैं। ध्यान से समझिएगा। और लेटर A कंसिस्ट ऑफ यूनिफॉर्म वायर, ये वायर का एक A टाइप का लेटर बन गया। रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम पर सेंटीमीटर, ये जितने भी सेंटीमीटर का है वो 1 ओम पर सेंटीमीटर। द साइड्स ऑफ द लेटर आर ईच ऑफ 20 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर है, तो ये भी 20 सेंटीमीटर है। ध्यान से समझिएगा। लॉन्ग एंड क्रॉस पीस इन द मिडिल इज 10 सेंटीमीटर, और ये जो है 10 सेंटीमीटर है। वाइल द एपेक्स एंगल इज 60 डिग्री, और जो ये एंगल कह रहा है वो आपका 60 डिग्री है। फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द लेटर बिटवीन द 2 एंड्स ऑफ द लेग। ए और बी लेग का हमें रेजिस्टेंस फाइंड करना है। व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ ए एंड बी ऑफ द लेग। तो हम इस तरह से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बना लिए। तो कह रहे हैं 1 ओम पर सेंटीमीटर, तो ये 20 सेंटीमीटर है, ये 20 सेंटीमीटर है। तो इसको हम इस तरह से कंबाइन करेंगे तो ये 10 ओम, और इस तरह से कंबाइन करेंगे तो ये 10 ओम हो जाएगा। क्योंकि ये मिडिल है, मिडिल ये जो 10 सेंटीमीटर है ये मिडिल में है, तो मिडिल में से ये 10 हो जाएगा और ये 10 होगा। ध्यान से समझिएगा, जिस तरह से ये 10 होगा उधर इधर से भी हम 10 ओम कर लेते हैं, इधर से भी हम 10 ओम कर लेते हैं।
10 ओम इसलिए किए क्योंकि ये जो है वो मिडिल में है, तो 20 ये 1 लेग है, 21 लेग है, तो श्योर है कि 10 में ये डिवाइड होगा और 10 में ये डिवाइड होगा। इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, ये आपका 10 ओम। ध्यान से समझिएगा, मीन्स द रेजिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर इज 1 ओम, सो रेजिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इज 20 ओम, यानी कि ये टोटल जो होगा 20 ओम और ये हो जाएगा 20 ओम। हमें फाइंड करना है व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ ए, मीन्स लेग ऑफ ए एंड बी। तो सबसे पहले इसकी बात करते हैं। देखिए ये जो कंबाइंड है इसको फिगर के रूप में हम फाइंड करेंगे, ध्यान से समझिएगा। इसको अगर हम फिगर बनाना चाहेंगे तो ये इस तरह से कंबाइंड बनेगा। ये आपका फिगर, ये आपका बी हो जाएगा, ये आपका ए, और ये 10 ओम, ये 10 ओम, और ये होगा 10 ओम, ये 10 ओम और ये 10 ओम। ये आप देख सकते हैं कि दोनों जो है सीरीज कॉम्बिनेशन में है। ये जो दोनों है वो किस कॉम्बिनेशन में है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में है। वी नो दैट सिंस 1 बाई, इसको सीरीज कॉम्बिनेशन का हम फॉर्मूला यूज करते हैं, तो हम लिख सकते हैं आर एस इज इक्वल टू R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 10 ओम प्लस 10 ओम इज इक्वल टू 20 ओम। इस तरह से ये जो है हमारा 20 ओम हो जाएगा। इसी का अगर इक्विवेलेंट यहां पर अगर फिगर बनाएंगे, ध्यान से समझिएगा, तो इस तरह से ये आपका बी हो जाएगा, ये आपका ए, ये 20 ओम, ये 10 ओम, ये 10 ओम और ये 10 ओम। अब आप देख सकते हैं कि ये जो दोनों कॉम्बिनेशन है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, सिंस 1 बाई आर पी इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 इज इक्वल टू 1 बाई 20 प्लस 1 बाई 10 इज इक्वल टू 20, ये 1 प्लस ये आपका 2 मीन्स 3 बाई 20 हो जाएगा। सो आरपी इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं, इसको पलट देते हैं 20 बाई 3 ओम। तो ये कंबाइन जब हो जाएगा तो एक सीरीज बन जाएगा, यानी कि हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ध्यान से समझिएगा। इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ये बी हो जाएगा और ये ए, ये 10 ओम, ये 20 बाई आपका 3 है, 3 ओम और ये 10 ओम। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है। इसका फाइनल बात करते हैं, सिंस आर एस इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3 इज इक्वल टू 10 प्लस 20 बाई 3 प्लस 10, एलसीएम हमारा 3 हो जाएगा, ये 30 प्लस 20 प्लस 30, ये आपका 50 और 3 80 और बाई 3, सो आर एस इज इक्वल टू ये आपको 26 और ये हो जाएगा 3 6 या 18 और ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये आपका 7 ओम। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को हम इस तरह से बनाते हैं, ये आपका अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हम कह सकते हैं, और ये जो है अकॉर्डिंग टू आप कह सकते हैं फिगर। ये आप ओरली भी सॉल्व कर सकते हैं, बहुत आसान है, 1-2 बार प्रैक्टिस करिएगा तो इस तरह से आप फटाफट आप न्यूमेरिकल बना सकते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ध्यान से ये आप उतार कर आप फेयर की कॉपी पे जरूर उतारिएगा और इसको घर पे प्रैक्टिस जरूर करिएगा। बहुत इजी है और इसी तरह का और सब हम बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल की बात करते हैं। न्यूमेरिकल है कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P and Q ऑफ द नेटवर्क शोन इन फिगर। ये P and Q जो फिगर बना हुआ है, ये नेटवर्क का हमें फाइंड करना है रेजिस्टेंस। व्हाट इज द P and Q of this figure resistance and what is the P and Q of this figure resistance। तो दो अलग अलग फिगर है, नेटवर्क है, इस दोनों का हमें रेजिस्टेंस फाइंड करना होता है। तो सबसे पहले हम इस फिगर की बात करते हैं।
फिगर का प्रॉब्लम ओरली होता है, आप ध्यान से इसको समझिएगा तो ओरली आप इसको जवाब दे सकते हैं। बहुत ही आसान मेथड से हम बता रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये जो फिगर बना हुआ है, सबसे पहले पीछे से हम लोग चलते हैं। ये आप देख रहे हैं कि एक के बाद एक जुड़ा हुआ है, एक के बाद एक जुड़ा हुआ है। इसको फिगर के माध्यम से हम आपको बताना चाहेंगे, ध्यान से समझिएगा। इसको हम इस तरह से कंबाइन कर लेते हैं। इस तरह से कंबाइन जब कर लेते हैं तो आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा कि ये फिगर कहना क्या चाह रहा है। ये सपोज दैट ये P है और ये Q है, ये 4 ओम है और ये 3 ओम है, और ये जो है आपका 4 ओम और ये 4 ओम और ये आपका 4 ओम और 2 ओम, ये दोनों एक दूसरे से कनेक्ट है, एक के बाद एक कनेक्ट है। तो ये दोनों को हम सीरीज फॉर्म में लिख लेते हैं। ये 4 ओम हो गया और ये आपका 2 ओम हो जाएगा, और इसको हम इस तरह से कर लेते हैं। और ये जो है आपका 3 ओम, फिर ये आपको कर लेते हैं, ये आपका 3 ओम, और ये जो है ये आपका P, इसको भी बढ़ा लेते हैं, ये Q है और ये 4 ओम है। ध्यान से समझिएगा, ये इसी फिगर को हम 4 ओम किए हैं, ये 3 ओम, ये फिर 4 ओम, और इस नेटवर्क को हम क्या किए, 4 ओम 2 ओम को हम क्या कर दिए हैं, ये इस तरह से एक दूसरे से कंबाइन है तो ये सीरीज में लिख दिए हैं, और ये 3 ओम हो गया। आप जानते हैं सीरीज का फॉर्मूला RS is equal to R1 plus R2 means 4 ohm plus 2 ohm is equal to 6 ohm। यानी कि ये जो कंबाइन कर रहे हैं ये 6 ओम हो गया। तो इसको फिर से फिगर की बात करते हैं, ध्यान से फिगर भी आप समझिएगा और इधर भी समझिएगा। इसको हम इस तरह से कर लेते हैं, ये आपका Q, ये P और ये 4 ओम, और ये आपका 4 ओम, और ये आपका 3 ओम है, और ये आपका 3 ओम है, और ये 4 और 2 ये हमारा 6 ओम हो गया। जैसे कि जानते हैं कि ये दोनों अब जो है वो पैरेलल में है, सो 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 और इज इक्वल टू 1/6 प्लस 1/3 करते हैं। एलसीएम 6 हो जाएगा हमारा, 1 प्लस ये 2 यानी कि 3/6, ये 1/2 हो जाएगा। सो आरपी का वैल्यू हमारा 2 ओम हो जाएगा। तो इसको कंबाइन किए हैं तो हमारा 2 ओम हो गया। तो देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, फिर 4 और 2 बन जाएगा, इस तरह से बन जाएगा 4 और 2 बन जाएगा। तो फिर यही सेम फिगर हम इसके लिए भी कर लेते हैं। यहां पर ध्यान से समझिएगा, ये आपका 4 ओम हो जाएगा और ये आपका 4 ओम, और इसको कंबाइन किए हैं तो 2 ओम हो गया। और ये 4 ओम और ये 2 ओम जो है इस तरह से सीरीज में बन जाएगा, और ये 3 ओम और ये आपका 4 ओम, ये आप P लिख सकते हैं और ये आप Q लिख सकते हैं। तो फिर यही कंडीशन हम ये अप्लाई करते हैं, ये आपका करिएगा तो फिर ये आपका इस तरह से फिगर बन जाएगा। यही अब सेम केस होगा, यानी कि इसका रिजल्ट जो होगा वो आपका लास्ट में 2 ओम होना चाहिए। तो इसको कंबाइन करते हैं तो फिगर आप देखिएगा ध्यान से, ये 4 ओम लिख लेते हैं, और ये जो है ये P कर लीजिए, ये Q कर लीजिए, और ये 3 ओम, इसको कंबाइन किए हैं तो आपका 6 ओम आया है। तो 6 ओम और 3 ओम को कंबाइन किए हैं तो 2 ओम आया है, और 2 और 4 ये आपका 6 हो जाएगा। तो इस तरह से इसको फाइनल रिजल्ट की बात करते हैं, ये आप लिख सकते हैं इस तरह से, ये आपका Q हो गया, ये P, ये 4 ओम और ये 2 ओम, सिंस RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 4 प्लस 2 मीन्स 6 ओम। तो ये 6 ओम इसका फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा 6 ओम ओरली कैसे बनाते हैं।
इसको 4 और 2 को देख रहे हैं कि सीरीज फॉर्मेशन में है। सीरीज फॉर्मेशन में है तो इसका फॉर्मूला होता है RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2, यानी कि 4 और 2 6 हो जाएगा। ये 6 और ये 3 जो होगा इसको छोड़ देंगे, पहले इसकी बात करते हैं। 4 और 2 को करते हैं, एक के बाद एक जुड़ा हुआ कंबाइन है, तो इसको हम बोलते हैं क्या, सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का इस तरह से निकालते हैं तो 6 ओम होगा, और 6 ओम और 3 ओम दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। तो पैरेलल का फॉर्मूला हम जानते हैं 1/Rp इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो इसको हम क्या करते हैं, दिमाग में कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन करके 2 ओम ला देते हैं। जब ये 2 ओम हो जाएगा तो ये फिर आते हैं 4 ओम और 2 ओम। इस जिस तरह से ये बना है 4 और 2 ओम का फिर कंबाइन करते हैं तो 6 ओम आता है, और 6 ओम और 3 ओम का फिर कंबाइन करते हैं तो फिर हमारा 2 ओम होगा, और 4 और 2 जो होगा वो सीरीज में है, तो इस तरह से हमारा 6 ओम हो जाता है। तो बहुत ही आसान तरीका है, इसको आप लोग ओरली भी बनाने की कोशिश करिएगा और आप नोट्स पे इसको लिख करके प्रैक्टिस करिएगा। तो अब बात करते हैं इस फिगर का, इस नेटवर्क का। बहुत ही आसान होता है। ये आप फिगर बना करके आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा इसका कितना होगा। वैसे तो हम बताएंगे, लेकिन आप भी अपने से बना करके इसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि इसका फाइनल इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस कितना आ रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं, देखिएगा एक सर्किट की बात करते हैं। ऐसे 1 2 3 4 है, और एक का अगर निकाल लेते हैं तो सब निकल जाएगा। तो सबसे पहले ये आप देख लीजिए, इसको अगर हम फिगर बनाते हैं तो इस तरह से कर सकते हैं, ध्यान से समझिएगा। ये आपका 2 ओम और 2 ओम जो है वो सीरीज में हो जाएगा, क्योंकि एक के बाद एक जुड़ा हुआ तो सीरीज में हो जाएगा। नीचे वाला भी सीरीज में हो जाएगा। ये 2 ओम और ये 2 ओम, ये 2 ओम और 2 ओम। इस फिगर को हम इस तरह से भी हम नोट कर सकते हैं। ठीक, इसको हम P पॉइंट कर लेते हैं। फिर इसी को हम, बाकी तो 1 2 3 इसी तरह से है, तो फिर हम इसको ऐसे भी कर लेते हैं। ध्यान से समझिएगा। ये आपका 2 ओम और ये 2 ओम, ये 2 ओम और 2 ओम। फिर इसको एक बना लेते हैं इस तरह से फिगर। ये 2 ओम और ये 2 ओम, 2 ओम और ये 2 ओम। फिर एक और फिगर बना लेते हैं, 4 है, ये 2 ओम और ये 2 ओम, 2 ओम, 2 ओम। ये आपका Q हो जाएगा। तो इस तरह से आपका P एंड Q का, इसी को हम इस फॉर्म में लिख दिए हैं बहुत ही आसान रूप से बनाने के लिए। तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो है किस कंडीशन में है। ये आप देख सकते हैं कि यदि RS निकालते हैं तो R1 प्लस R2 यानी कि 2 प्लस 2 यानी कि 4 ओम कर लेते हैं। तो ये 4 ओम होगा, ध्यान से समझिएगा। ये P कर लेते हैं। ये अब इसको कंबाइन करते हैं तो ये आएगा, फिर इसको करते हैं तो ये आएगा। ध्यान से समझिएगा। फिर इसको कंबाइन करते हैं तो अब धीरे धीरे इजी होते जाएगा। आप इस तरह से कर लेते हैं, और फिगर से बनाने से क्या होता है कि आपके दिमाग में बैठ जाता है। अब ये 4 ओम हुआ, ये भी 4 ओम हो गया, ये 4 ओम हो गया, और ये भी 4 ओम, ये 4 ओम हो गया, और ये 4 ओम, और ये भी 4 ओम हुआ, और ये भी 4 ओम, और इसको हम Q कर लेते हैं। हम ध्यान से समझिएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। 4 4 जो है पैरेलल में है, सिंस 1/Rp इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 यानी कि 1/4 प्लस 1/4 इज इक्वल टू, ये आपका 4 एलसीएम हो जाएगा, 1 प्लस 1 यानी कि 2/4। इसको कटाते हैं तो 1/2। सो Rp का वैल्यू हो जाएगा 2 ओम। तो एक बॉक्स का जो है वो आपका इस तरह से बन जाएगा।
ये आपका Q हो गया, ये आपका P। इसको सॉल्व किए हैं तो ये आपका 2 ओम हुआ, ये भी 2 ओम होगा, और ये भी 2 ओम, ये भी 2 ओम। अब आप देख सकते हैं कि ये जो है एक के बाद एक के बाद एक जुड़ा हुआ है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है। सो RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 इज इक्वल टू 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, ये 2 2 4 6 और ये 8 ओम। इस तरह से ये न्यूमेरिकल आसानी से बन जाता है। तो ये जो भी न्यूमेरिकल है आप ओरली भी बना सकते हैं। ये जो है वो आपका सीरीज में है, तो ये 2 2 4 हो जाएगा, ये भी 2 2 4 हो जाएगा, और ये आपका पैरेलल में हो जाएगा, और पैरेलल में हो जाएगा ये 1/4 1/4 यानी कि 2/4 यानी कि ये 2 हो जाएगा। तो ये 2 2 2 2 2 2 4 2 6 2 8, इस तरह से इसका ओरली आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो इस तरह से जो भी आपका फिगर का प्रॉब्लम होगा आराम से बनाइए, और इसका आंसर आप ओरली बना करके कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, देख करके नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और हम लोग फिगर की बात करते हैं, बने रहिए इस वीडियो में, बहुत सारा आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो फिर हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करते हैं, नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बात करते हैं। व्हाट इज द इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B इन द फॉलोइंग फिगर। A एंड B में जो फिगर में दिया हुआ है, इसका हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। ये इस वीडियो का लास्ट न्यूमेरिकल है, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जा रहा है, इसलिए हम सोच रहे हैं कि यहीं तक आप देखिए और कोशिश करिए कि इस जो भी पैटर्न हम आपको फिगर का न्यूमेरिकल बताए हैं वो सारे पैटर्न को आप रिवीजन करिए, इस वीडियो को दोबारा तिबारा देखिए और घर पे प्रैक्टिस करिए, और प्रैक्टिस करने के बाद जरूर आप इसको ओरल बनाने की कोशिश करिए। बहुत आसान है, आराम से बनेगा। तो ये इस न्यूमेरिकल का बात करते हैं, ध्यान से आप समझिएगा। व्हाट इज द इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B इन द फ्लोइंग सर्किट। A एंड B ये जो सर्किट है इसका क्या होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, उसको फाइंड करना है। तो आप ध्यान से समझिएगा, ये सर्किट का जो पार्ट है ये अलग है, ये सर्किट का पार्ट जो है अलग है, ये सर्किट का पार्ट जो अलग है। ये जब सर्किट का पार्ट अलग अलग होते हैं तो वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में होते हैं, और जब एक के बाद एक ज्वाइंट होते हैं तो वो सीरीज कॉम्बिनेशन में होते हैं। तो ध्यान से आप समझिएगा, यहां से यहां ये सर्किट अलग है और ये सर्किट अलग है। ये बड़े सर्किट में अलग अलग सर्किट छोटे छोटे सर्किट में डिवाइड कर दिया गया है। इसको हम इस फिगर के रूप में भी लिख सकते हैं। ध्यान से आप समझिएगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको 3 सर्किट है, ये आपका 2R हो जाएगा, ये 2R हो जाएगा, और ये 2R हो जाएगा, और ये आपका B और ये आपका A हो जाएगा। तो ये अलग सर्किट था तो 2R, ये अलग सर्किट है 2R, और ये अलग सर्किट। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये कॉम्बिनेशन जो है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मेशन कर रहा है। और सिंस आप जानते हैं 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये 1/2R प्लस 1/2R और प्लस 1/2R इज इक्वल टू 2R हमारा एलसीएम हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 मीन्स 3/2R हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा अगर RP का वैल्यू निकालना हो तो ये पलट देते हैं, ये 2R/3 ओम। इस तरह से हमारा ये न्यूमेरिकल बन गया। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि वीडियो पसंद है तो कृपया लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए, और यदि आप हमारे नए आप स्टूडेंट हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इस जो भी वीडियो है उसको आप फायदा उठाएं। कंपटीशन और आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो सारे वीडियो जरूर देखिए और इस वीडियो को रिपीट करके देखिए, क्योंकि बहुत इसमें स्पेशल न्यूमेरिकल बताया गया है फिगर वाले। तो इसको आप देखते रहिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।